السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناء كما كان حقه، لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف گر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف گر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ اور ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے، جس کی توفیق اور عنایت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ماؤہا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، مکین گنبد خضرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحابہ و احبابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، حیات کے بارے میں اور درود پاک کی فضائل کے بارے میں کچھ گفتگو سماعت کی ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اہم گفتگو آپ لوگوں کی گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشر، جو میرا خوش نصیب امتی مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ صرف رحمتیں ہی نازل نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کے ایک درود کے بدلے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک کا فیضان ہے، یہ درود پاک سے بٹکا ہوا نور ہے کہ جو اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی میں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے دنیاوی مشکلات بھی حل ہوتی ہے اور اخروی مشکلات بھی حل ہوتی ہے۔ درود پاک ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو ہم
एक वक्त मुकर्रर पर रोजाना पढ़ने की कोशिश करें। अगर हमें इसकी आदत नहीं हुई है तो हम इसकी आदत जरूर डालें। कई लोग होंगे जो पाबंदी के साथ रोजाना दुरूद पाक नहीं पढ़ते होंगे। अगर अब तक आप नहीं पढ़ते हैं तो आज से आप ये पुख्ता इरादा करें कि आज से मैं उस वक्त तक सोऊंगा नहीं जब तक अपने नबी पे 100 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ लूंगा। यार, जिस नबी ने हमारे लिए अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए हैं, रातों को जाग कर इबादतें करके अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं फरमाते रहे हैं, कभी ताइफ के मैदान में अपने कदम मुबारक लहू लहान फरमाए हैं, कभी गारे हिरा में इस उम्मत के लिए आप दुआएं फरमाते रहे हैं, और कभी मेराज के मौके पर अर्श इलाही पर पहुंचकर भी उम्मत का ख्याल फरमाए हैं। तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता है कि वो भी अपने नबी को रोजाना याद किया करे? वो नबी जो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ तदखुलू शूकतुन फी रिजलि अहदिकुम लवजदतु अलमा। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाए, लौ तदखुलू शूकतुन फी रिजलि अहदिकुम लवजदतु अलमा। ऐ मेरे उम्मती, अगर तेरे पैर में कांटा भी चुभता है तो उसकी तकलीफ तेरा नबी महसूस करता है। इतने रऊफ है, इतने रहीम है, और रब ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो उम्मत से इतनी मोहब्बत और इतना उम्मत का दर्द महसूस करने वाले नबी, और हम हैं कि बेहिसी की जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से दिली ताल्लुक का नाम, ये गुफ्तगू गौर से समाअत कर लीजिए कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से दिली ताल्लुक का नाम और हुजूर से मोहब्बत वाले रिश्ते का नाम और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से इश्क का नाम ईमान है। अगर आप मुझसे पूछे कि ईमान किसको कहते हैं तो मैं आपको वही कहूंगा जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाए हैं। क्या फरमाए हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। लोगों, अगर ईमान किसे कहते हैं तुम इसको मालूम करना चाहते हो तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। याद रख लो और पक्की बात याद रख लो, और इसको अपने दिल में और अपने इरादों में और अपने ईमान के तराजू में तोल लेना कि हम इस वक्त तक मोमिन बने हैं या नहीं बने हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम में से कोई भी शख्स मोमिन हो नहीं सकता है हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि, जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत ना करे, वन नासी अजमाइन, और कायनात के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं आती है उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता है। हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से वालहाना इश्क का नाम ईमान है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से दिली ताल्लुक का नाम ईमान है। अगर इसमें कमी है तो फिर ईमान में कमी है। अगर मोहब्बत रसूल से सरशार है और हुजूर की मोहब्बत में कभी आंसू भी निकलते हैं, उनकी याद भी आती है, अगर उनसे अकीदत के वो रिश्ते हैं कि बंदा हमेशा दुरूद पाक पढ़ता रहता है तो फिर हमें मुबारक हो। और अगर इन चीजों में कमी है तो फिर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से उस तरह से मोहब्बत का रिश्ता कायम करने की कोशिश करें। तो अजीजान गिरामी कद्र हजरात, अजीज बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, ये बात पक्की याद रख लीजिए कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का नाम ईमान है। दीगर अमाल जो हम लोग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, माँ बाप की इताअत करते हैं, सदकात व ज़कात और फितरात वगैरह अदा करते हैं,
जो कुछ हम करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, तो फिर ये क्या चीज है? अगर हुजूर की मोहब्बत का नाम ही ईमान है तो फिर इन अमाल का क्या करना है? तो अजीज़ान गिरामी कद्र हजरात, अजीज बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, ये बुनियाद है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बुनियाद नहीं है तो इसके बगैर हम घर नहीं बना सकते हैं। अगर बुनियाद नहीं है तो इसके बगैर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। वो जो पहले कालम में डाल के एक ढांचा तैयार किया जाता है और फिर सुतून खड़े किए जाते हैं और कुछ जमीन में खुदाई करके कालमों को उसके अंदर जब्त किया जाता है ताकि मजबूती आ जाए, तो वो बुनियाद होती है, उसके बगैर घर नहीं बनता है। इसी तरह जब हम सादा घर भी बनाते हैं तो उसके लिए दीवारें खड़ी करना होती है, तो पहले जमीन में कुछ खुदाई करके नीचे से उसको क्या कहते हैं, पाया बनाया जाता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है, उसके ऊपर दीवारें कायम होती है। अगर कोई कहे कि ये बिला वजह मटेरियल क्यों खराब करते हो, जमीन में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जमीन के ऊपर ऊपर दीवारें बना दो, तो ऐसा घर ज्यादा दिन जमीन पे टिक नहीं सकता है। उसको अगर दीवार को कोई धक्का देगा तो वो गिर पड़ेंगे और उससे घर का भी नुकसान होगा और घर वालों का भी नुकसान होगा। इसलिए बुनियाद होना जरूरी है, बगैर बुनियाद के घर तामीर नहीं होता है। इसी तरह ईमान की बुनियाद मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसपे जो दीवारें और जो तामीर कायम होती है उसकी मिसाल अमाल की तरह है। जितने ज्यादा नेक अमाल होंगे उतना ज्यादा जो है सवाब मिलेगा और जितना ज्यादा सवाब होगा कयामत के दिन उतनी ज्यादा जो है दर्जात में बुलंदी होगी। जितनी नमाजें ज्यादा होंगी उतने दर्जे बुलंद होंगे, जितने रोजे ज़कात ज्यादा होंगे उतना बुलंद दर्जा जन्नत में अता किया जाएगा। लेकिन ईमान जो है वो हुजूर की मोहब्बत का नाम है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए है कि कयामत वाले दिन मुझसे सबसे ज्यादा नजदीक वो लोग होंगे जो कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ते होंगे। कयामत का दिन कितना होलनाक दिन होगा। आज ये धूप की शिद्दत हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। धूप शिद्दत की है, 2 घंटे अगर हमें कहा जाए कि धूप में खड़े रहो तो खड़े होना मुश्किल हो जाता है, पसीने से जिस्म शराबोर हो जाता है। धूप की शिद्दत हमें बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन कयामत वाले दिन ये सूरज जो आज कोसों मील दूर है हमसे, ये सिर्फ 1.25 नेज़े की दूरी पर होगा। एक नेजा कितना होता है? हाथ, 1.5 हाथ का नेजा होता है। तो बयान किया गया है कि 1.25 नेज़े की दूरी पर सूरज होगा। यूं समझ लो कि ये छत है तो यहीं पर सूरज होगा। उसकी तपिश की वजह से दिमाग पिघल रहे होंगे। इतना हौलनाक दिन होगा कयामत का। तपिश की वजह से दिमाग पिघल कर गिर रहे होंगे और फरमाया गया कि पसीना इतना होगा लोगों को कि आधे कानों तक पसीना आ गया होगा। इतना खतरनाक वो दिन है और हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। ना माँ बेटे का ख्याल कर रही होंगी, ना बेटा माँ का ख्याल कर रहा होगा, ना बाप बेटे की परवाह करेगा, ना बेटा बाप की परवाह करेगा। उस दिन कोई दोस्त दोस्त के काम नहीं आ रहा होगा। हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। अगर कोई चीज काम आएंगी तो वो रसूलुल्लाह की चादर मुबारक काम आएंगी। और हुजूर ने फरमाए कि उस कयामत वाले हौलनाक दिन में मुझसे सबसे ज्यादा नजदीक तरीन वो लोग होंगे जो कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ते होंगे। जिस अजीम जात से हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए था उनसे हम दूर हो चुके हैं। मोहब्बत रसूल के चिराग हमें सीनों में जलाना चाहिए थी, लेकिन उस तरह से दिलों को उनके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक से हमने जोड़ा नहीं है। ये हमारी लापरवाही है। ये दोस्त, ये माँ बाप, ये रिश्तेदार, ये अपने चहीते कहाँ तक काम आते हैं। ये कब्रिस्तान पहुंच